نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو گروپ میں شامل جتنے بھی احباب، علماء، ثنا خان، نقبا اور سماعت کرنے والے جتنے بھی حاضرین و سامعین ہیں، میں تمام کو اپنی دل کی گہرائیوں سے سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناگہانی آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کے جو الفاظ تلاوت کیے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں اور اس حق کے لیے کہ جو نازل کیا گیا۔ حضرات گرامی، موجودہ صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے۔ دنیا جس طرح ایک سب جیل بن گئی ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے، اور بیماری نے جس طرح کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ نے انسان کی اکڑ کو کس طرح نکال کے رکھ دیا ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اس سے بڑھ کے اور کون سا وقت آئے گا کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے ہوں گے تیار؟ کیا اس سے بھی بڑا کوئی وقت آنے والا ہے؟ مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، لوگ ابھی بھی غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کو تیار نہیں، اور ابھی بھی توبہ کی طرف ان کے دل مائل نہیں، تو پھر کون سا وہ وقت آئے گا؟ اب تو وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ دوڑ پڑو اللہ کی طرف، آؤ اپنے اللہ کو راضی کریں، آؤ اپنی زبانوں کو اس کے ذکر سے تر کریں، آؤ اپنے دلوں میں اس کے ذکر کی چاشنی کو ذرا داخل کر کے تو دیکھیں، آؤ اپنے اللہ کو ذرا راضی کریں۔ حضرات گرامی، یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن پھر بھی حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے ہم پہ یہ کرم ہے کہ ابھی اس نے یہ ایک تھوڑی سی جھلک دکھا کے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو عذاب آ جائے تو پھر توبہ کے موقع نہیں ملتے۔ یہ اس نے اپنے محبوب کی انبری زلفوں کا صدقہ ہمیں توبہ کا ایک موقع عطا کیا ہے، اور توبہ کا موقع مل جانا یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بندے کو توبہ کے لیے موقع دے دے کہ ابھی وقت ہے، آجا میری بارگاہ میں جھک جا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے کسی کا جنازہ پڑھنے کا موقع مل گیا تو شکر کر اللہ کا، اللہ نے تجھے توبہ کے لیے ایک اور موقع دے دیا ہے، اس لیے کہ اگر جنازے کی چارپائی پہ اس کی جگہ تیرا جسم ہوتا تو تیرے لیے تو توبہ کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ تو حضرات گرامی، ابھی وقت ہے، آئیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ وہ اتنا کریم مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اتنی جلدی معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے وہ کتنی جلدی تیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے جب بد دعا فرمائی کہ اے مالک اسے اس کے خزانہ کے سمیت دفن کر دے، زمین میں غرق کر دے اس نے میری بات نہیں مانی، یہ تیری عبادت کے لیے تیار نہیں ہوا، تو نے اسے نوازا ہے مگر پھر بھی یہ تیری بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو زمین نے اللہ کے حکم سے قارون کو نگلنا شروع کر دیا، وہ اس میں دسنے لگا۔ تو جب وہ سمجھ گیا کہ میں تباہ ہونے لگا ہوں، برباد ہونے لگا ہوں، غرق ہو جاؤں گا، تو کہنے لگا موسیٰ مجھے بچا لو، میں وعدہ کرتا ہوں تیری بات مانوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری توبہ کا وقت اب گزر چکا۔ اس نے غرق ہونے سے پہلے 70 مرتبہ آواز دی موسیٰ مجھے بچا لو، تو آپ نے فرمایا نہیں، اب وقت گزر گیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے تو
मेरे करीम मालिक ने आवाज दी है, मूसा इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। उसने तुझे 70 दफा पुकारा, तूने उसकी एक नहीं सुनी। मूसा मुझे अपनी रबूबियत की कसम, वो अगर एक आवाज मेरी रहमत को देता, मैंने उसे बचा लेना था। तो हजरात गिरामी, सामी सामीन किराम, जरा तवज्जो फरमाइएगा। ये वाकई अर्ज करने का मकसद ये है कि जो रब एक आवाज पे कारून जैसे काफर को बख्शने के लिए तैयार है, वो अपने महबूब के गुलामों को कितनी जल्दी माफ करेगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजल ही नहीं। तो वक्त का तकाजा यह है कि हम अल्लाह के बन जाएं, वक्त का तकाजा यह है कि हम उसकी बात मानें और उसकी बारगाह में झुक जाएं। देखिए ना, इंसान ने तो अपनी अकड़ दिखा ली। आज कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि हमारा जिस्म और हमारी मर्जी? आज कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि हम अपनी मर्जी से जिएंगे? ना मेरे भाई ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बस एक छोटे से वायरस के जरिए बंदे की औकात उसे बता दी कि अब बंदे, जमीन भी मेरी है, तेरा जिस्म भी मेरा है और मर्जियां भी मेरी ही चलेंगी। और यही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बता दी कि आजा, मेरे दरवाजे के अलावा अब तेरे पास कोई ऐसा दरवाजा नहीं कि जहां तू जा सके। हालात देखिए कि जिस बीमारी को डॉक्टरों ने, दुनिया भर के डॉक्टरों ने ला इलाज कहा है कि इसका इलाज नहीं है, इसकी वैक्सीन नहीं है, इसकी दवाई नहीं है, उस बीमारी में मुब्तला होने वाले कितने ठीक हो रहे हैं। मेरा मालिक उन्हें शिफा भी तो दे रहा है ना। तो मालिक फरमाता है आओ। और देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक दफा किसी ने सवाल किया। कुछ उलमा ने अफलातून के मुतल्लक लिखा है कि उसने सवाल किया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरा सवाल ये है कि अगर आसमान ये कमान हो और हवादिस ये तीर हो और खुदा ताला तीर अंदाज हो, तो फिर उससे भागकर इंसान कहाँ जाए? जब आसमान ये कमान बन जाए और जमाने के ये दुख दर्द, ये मुसीबतें, ये तकलीफें, ये बीमारियां, ये तीर हों और खुदा ताला खुद तीर अंदाज हो, तो फिर इंसान भाग के कहां जाए? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीर अंदाज के पास जाके खड़ा हो जाए, क्योंकि तीर दूर वाले को लगता है, जो पास खड़ा हो उसे नहीं लगता। तो कितना प्यारा जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया। अगर आज हम भी अल्लाह के महबूब के बताए हुए तरीकों पे चले और हम अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने की कोशिश करें और अपने आप को इबादत का खूगर बना लें और अपने आप को मुसल्ले का आदी बना लें, मेरे भाइयों, चाहिए तो ये ना, मुसलमान हैं, हमें मुसल्ले पे वो सुकून आना चाहिए जो बच्चे को माँ की गोद में सुकून आता है। लेकिन आज हम उससे दूर हो गए और हमें वो सुकून नहीं मिल रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दरवाजा छोड़ दिया, सुन्नत मुस्तफ़ा को हमने छोड़ दिया। आज देखें कि मुसलमान नाम का मुसलमान रह गया। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जब बंदा अपने मालिक का बन जाता है ना, वो तौबा करता है और अपने मालिक की बारगाह में झुक जाता है, तो मालिक उसकी तौबा को कबूल भी फरमाता है। अल्लाह फरमाता, अफला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि तुम क्यों नहीं अल्लाह से माफी मांगते, क्यों नहीं उसकी बारगाह में इस्तिगफार करते? वो माफ करने के लिए आज भी तैयार है, क्योंकि वो बड़ा गफूर भी है और रहीम भी है। तो हज़रात गिरामी, मैं एक वाक़या अर्ज करना चाहता हूं। आपको अंदाजा होगा कि कितनी जल्दी अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है और अपने बंदों की जो उम्मीदें हैं उसको वो पूरा फरमा देता है। उलमा बयान फरमाते हैं कि अब्दुल्ला ताहिर ये खुरासान का गवर्नर था और खुरासान में एक लोहार वो शहर में काम करता था। तो काफ़ी अरसे के बाद फिर वो अपने गांव जाता और बीवी बच्चों से, अहले ख़ानदान से मिल के फिर आता और इसी तरह वो ज़िंदगी के अय्याम गुजार रहा था। किताबों में आता है, उलमा बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा उसने काफ़ी दिनों के बाद सोचा कि चलो मैं घर जाऊं, बीवी बच्चों को मिल आऊं। तो रात को उसने सफ़र शुरू किया। इत्तफाक ऐसा, उसने इत्तफाक के उस रात सिपाहियों ने चंद चोरों को पकड़ा और अब्दुल्ला ताहिर तक उन्होंने पैगाम भी भिजवा दिया कि हमने इतने चोरों को पकड़ लिया है। एक चोर वो किसी तरीके से भाग गया। अब सिपाही परेशान थे कि क्या करें। तो उन्होंने मशवरा किया कि चलो एक और किसी को भी पकड़ लेते हैं जिसको कोई जानने वाला ना हो, तो इस तरह हम शर्मिंदगी से बच जाएंगे और गवर्नर की नाराजगी से हम बच जाएंगे। तो उन्होंने रात को गलियों में फिर के देखा तो एक मुसाफिर मिल गया। ये वही लोहार था जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। पकड़ के उसे जेल में डाल दिया।
अब उसने जेल में जाके सोचा कि अब तो एक ही दरवाज़ा है मेरे मालिक का कि जहां मैं अर्जी करूं तो मेरा मालिक ही मुझे अब इस जिल्लत से और इस परेशानी से बचा सकता है। तो उसने चादर बिछा ली जेल में और नमाज शुरू कर दी, नफल शुरू कर दिए, मालिक से उसने बातें करना शुरू कर दी। और किसी आशिक ने बड़े मज़े की बात की है, वो कहता है नदामत के चरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। तो उसने जब अपने मालिक को पुकारा तो उलमा ने बयान किया, लिखते हैं कि उधर अमीर खुरासान वो सो रहा था, उसने ख्वाब देखा कि तख्त पे बैठा है और चार ताकतवर आदमी आए और उन्होंने उसके तख्त को पकड़ के उठा के उल्टना चाहा। तो उसकी आंख खुल गई, बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या मामला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पड़ी, वजू किया, 2 रकत नफल पढ़े कि मालिक ये क्या मामला, कैसी ख्वाब है, अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दे। फिर सोया तो फिर यही ख्वाब आई, हत्ता कि 4 मरतबा उसने यही ख्वाब देखी। तो जब चौथी मरतबा बेदार हुआ तो उसने वजू किया, फिर नफल पढ़े और जेलर को बुला भेजा और उससे पूछा कि क्या तेरे इल्म में कोई ऐसा बंदा तो जेल में नहीं बंद कि जो मजलूम हो, जिस पे जुल्म हुआ हो। मुझे मालूम ऐसा होता है कि किसी मजलूम की आ ने ना आज मुझे परेशान कर दिया है। तो उसने बताया मैं ऐसे तो नहीं जानता, मगर एक ऐसा आदमी जेल में बंद है, वो आज ही आया है कि जब से आया है वो नमाज पढ़ रहा है और रो रो के दुआएं कर रहा है। उसने कहा उसे बुलाओ। तो जब उसे बुलाया गया और अमीर खुरासान अब्दुल्ला ताहिर ने जब सारी बात पूछी तो उसने बताई, तो पता चला ये तो मजलूम है, इस पे जुल्म हुआ है, ये लोहार है, अपने गांव जा रहा था। तो अब्दुल्ला ताहिर ने उसे कहा कि तुम मेहरबानी कर और मेरी 3 बातें उनको कबूल कर। लोहार ने कहा जनाब फरमाइए। उसने कहा पहली तो ये कि मुझे माफ कर दे, दूसरी ये कि मेरी तरफ से 1,000 दिरहम कबूल कर, और तीसरी ये कि तू मुझसे वादा कर कि तुझे जब भी कोई जरूरत आए ना तू मेरी तरफ आएगा ताकि मैं तेरी मदद कर सकूं। तो लोहार ने मुस्करा के कहा कि ए अमीर खुरासान, ए गवर्नर, मैं तेरी 3 बातों में से पहली 2 बातें तो कबूल करूंगा, मगर तीसरी बात मैं नहीं कबूल करूंगा। मैं तुझे माफ भी कर देता हूं, 1,000 दिरहम भी कबूल करता हूं, लेकिन ये जो तू कह रहा है ना कि मुश्किल वक्त में मैं तेरे पास आऊं, वो मैं कबूल नहीं करूंगा। अमीर खुरासान ने कहा वजह? उसने कहा वजह यह है कि मैं वो दरवाजा क्यों छोड़ के तेरे पास आऊं कि जो मुझ जैसे लोहार की खातर तेरे जैसे गवर्नर के तख्त को 4-4 दफा उल्ट के रख देता है। तो मेरे भाइयों आओ जरा अल्लाह की बारगाह में अपने मालिक को राजी करें, अपने मालिक की बारगाह में झुक जाएं और सच्ची तौबा का जज्बा पैदा करें। अभी तो अल्लाह ने हमें वक़्त दे दिया है कि हम घरों में हैं, अपनी औलाद की करें तरबियत, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के आदी हो जाएं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत अपनी औलाद के दिलों में उसको डालें, अपनी औलाद को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक चलना हम सिखाएं। इसलिए कि हजरत गिरामी ये असल जिंदगी ये है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बन जाएं, और यही जिंदगी की कामयाबी है। वो भी कोई बंदा है कि जो बंदा खुदा का हो लेकिन गुलामी गैरों की करे, कभी अमेरिका का मंगता बने, कभी रशिया का मंगता बने। आओ मंगते भी खुदा के बन जाएं, आओ दीवाने भी रसूलुल्लाह के बन जाएं, आओ मस्ताने भी रसूलुल्लाह के बन जाएं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले हमें क़यामत तक जितने भी मसाब और आलाम और तकलीफें थी उनके बारे में भी हुजूर ने अपने सहाबा को आगाह किया और हमें वो चीजें अता फरमाई। आज देखे ना, करोड़ों रुपया लगा के साइंस जब किसी चीज पे रिसर्च करके नतीजा निकालती है तो आखिर उसे फिर पलट के दरवाजा रसूल पे ही वापस आना पड़ता है। वो सारी बातें तो मेरे मुस्तफ़ा ने बताई हुई हैं, हम तवज्जो नहीं करते। अब कोरोना वायरस से बचने के लिए उन्होंने कहा जी सफाई, इस्लाम ने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया। उन्होंने कहा जी हाथ धो, मुंह धो, आंखों का नाक का ख्याल करो, तो इस्लाम ने 14 सदियां पहले वजू दे दिया। अब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि वजू की सांस क्या है, इसमें हाथ क्यों धुलवाए जाते हैं, कुली क्यों करवाई जाती है, नाक क्यों साफ करवाया जाता है, और इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब है और कितना अच्छा वो दीन है कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को रोजाना 5 वक्त नमाज और फिर उससे पहले वजू करवा के हर किस्म के वायरस से महफूज रहने का एक जो मौका है वो फराम किया है। तो आए अपने आप को हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आदि बना दें और आका करीम की मोहब्बत में अपनी जिंदगियों को बसर करें। मैं
بھابڑا کے اور دیگر احباب جو اس گروپ میں شامل ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا سلسلہ یہ شروع کیا کہ حضور کے غلاموں تک گھر بیٹھے ہوئے دین اور آقا کریم کی محبت کی باتیں پہنچائی جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی عزت عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔